Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. Now, our topic is what technique of the capital budgeting. Okay, and in that we already discussed the non-discounting technique, that is payback period, and the that is average rate of return method. And then we already started discounting method. What do you mean by discounting method? So discounting method क्या consider करता है? That is time value of money. It means what? The present value of rupee worth more than the rupee of tomorrow. उसको ये consider करके वो calculation करता है and then take a decision whether to accept the project or reject the project. Clear? Now today we will start the next topic, next method, that is called as what? Important method, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, NPV. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by net present value method? Now net present value method, it is based on the time value of money and it is widely used for evaluation of the projects. It means what? It consider time value of money and it is a most widely used method for evaluation of the project. Yani this is the best method to check or to appraise the various investment proposal and select the best one. So net present value refers to the difference between present value of the all cash inflows and the present value of the all cash outflow associated with the projects. It means what? NPV is what? Present value of the cash inflow minus present value of the cash outflow. It means net present value method कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. ये क्या कैलकुलेट करता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो बाय डिस्काउंटिंग एट सर्टन रेट ऑफ रिटर्न. ओके, यानी जो फ्यूचर में आपको मनी मिलने वाला है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, सो वॉट एवर मनी विच इज़ रिसीव्ड इन द फ्यूचर डेट, उसका आज के दिन क्या वैल्यू है, आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट करता है. दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड calculate present value of the future cash flow which is received at some future date by discounting at a certain rate of return. And how it is calculated? It is calculated by difference between present value of the all cash inflow minus present value of the all cash outflow. Okay, so this is a formula. NPV is what? Present value of the cash inflow minus present value of the investment. Investment is nothing but outflow. आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका मनी जाता है ना, दैट इज़ व्हाट आउटफ्लो. और आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे इतना मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स इतना मिलेगा, दैट इज़ व्हाट इनफ्लो. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो, वी कैन गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू. क्लियर? नाउ ये खाली फॉर्मूला डाला है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट, ये टोटल पोर्शन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो है और ये पोर्शन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो. यानी कैश इनफ्लो रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर, एट द एंड आफ्टर 1 ईयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस RS2, उसको डिस्काउंट करना है, प्लस CI2 यानी कैश फ्लो जो आपको सेकंड ईयर में मिलने वाला हो, अगेन उसको डिस्काउंट करना है 1 प्लस RS2 अप टू n ईयर तक डिस्काउंट करना है. ओके, और उसमें से माइनस कर देना है इन्वेस्टमेंट. ओके, सो CI इज नथिंग बट फ्यूचर कैश इनफ्लो, R इज व्हाट रेट ऑफ रिटर्न, N इज व्हाट नंबर ऑफ ईयर्स एंड द CO इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल कैश आउटफ्लो. Now, what are the accept or reject rule? Okay, and based on the NPV, which project is select and which project is reject. So, single project under consideration is likely to be accepted when its net present value is greater than 0. It means what? When the NPV is net present value is positive. When net present value is positive. Now, greater than 0, it means what? Positive आना चाहिए. So, अगर NPV positive तो accept the project. And when the NPV is negative, that is what? Less than 0, so then reject the project. Okay, and if NPV is 0 and a cash inflow and cash outflow equal होगा, when the NPV is 0, then the management would be indifferent as to whether to accept or reject the project, and it is based on the management, either they accept the project or reject the project. Clear all of you? This is what net present value, that is accept reject criteria or accept reject decision rule. Clear यहाँ तक? Now, if mutual exclusive project are there, 2 or more mutual exclusive project are there,
then the first rank is given to those project which has highest NPV. ओके, देन उससे कम होगा उसको सेकंड रैंक, अगर उसको कम होगा तो थर्ड रैंक. इट मीन्स व्हाट, सपोज प्रोजेक्ट ए बी एंड सी है. ओके, ए का एनपीवी 10,000 आया, बी का एनपीवी 8,000 आया एंड सी का एनपीवी 12,000 आया. सो 12,000 वाले को वन, सेकंड प्रोजेक्ट थर्ड 10,000 को सेकंड एंड 8,000 वाले को थर्ड. आया समझ में? दिस इज व्हाट व्हेन द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आते हैं. दिस इज व्हाट एक्सेप्ट रिजेक्ट है. तो इन ब्रीफ, एनपीवी इज पॉजिटिव एक्सेप्ट, एनपीवी इज नेगेटिव रिजेक्ट. ना पॉजिटिव कब आएगा? व्हेन द इनफ्लो इज हायर देन द आउटफ्लो ना, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो इज हायर देन द आउटफ्लो, तो ही पॉजिटिव आएगा. एंड एनपीवी इज लेसर देन जीरो कब आएगा? व्हेन द एनपीवी का जो इनफ्लो है, जो आपको कैश मिलने वाला है, वो कम है एज कम्पेयर टू आपका आउटफ्लो. ओके, तो वो केसेस में एनपीवी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. सो वी हैव टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. Then what are the merits or the advantage of NPV method? So first method का merits is what? First, it consider the time value of money. लेता है ना, बिकॉज फ्यूचर कैश फ्लो का फ्यूचर कैश फ्लो लेके एज्यूम नहीं करता है, बट फ्यूचर कैश फ्लो को कन्वर्ट करता है इनटू प्रेजेंट वैल्यू एंड देन कैलकुलेशन इज डन. ओके, सो ये दिस मेथड कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सेकंड, इट कंसिडर द एंटायर कैश फ्लो ओवर एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, यानी जितना भी यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, 10 ईयर्स 20 ईयर्स का जितना भी लाइफ होगा ना, हर एक ईयर के कैश फ्लो को ये कंसिडर करता है. सो इट कंसिडर एंटायर कैश फ्लो ओवर एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स. नाउ दिस मेथड इज कंसिस्टेंट विद द शेयरहोल्डर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ. ओके, यानी दिस मेथड एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द शेयरहोल्डर्स वेल्थ. It means if the project which yield maximum present value of the cash flow is accepted, so market price of the share will be favorably affected. Okay, and with the help of this method, management consider those projects where NPV is positive as well higher. So जो ये method से project select करेगा, so result क्या आएगा? Accurate result आएगा. This will lead to what? Increase the market price of the shares of the company. This may lead to increase shareholders wealth maximization. Clear? Fourth, decision as to acceptance and rejection of the project can easily be made. If NPV is positive, accept, NPV is negative, reject. So decision is very easy. Fifth, under this method, a comparison is possible among different projects with the different working lives, as also yielding different income in different years. It means ये तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है, यहाँ पे कुछ एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया जाता है. सो ये तो क्या करता है, जितना भी वर्किंग लाइफ हो, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का हो, ओके, जितना भी डिफरेंट इनकम हो, हर एक का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है. एंड आपको पता है कि हर एक ईयर का प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंट फैक्टर अलग अलग रह जाता है. सो वहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट आता है. सो अंडर दिस मेथड कंपैरिजन इज मेड पॉसिबल अमंग द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट लाइव्स एज ऑल्सो यील्डिंग डिफरेंट इनकम इन द डिफरेंट ईयर्स. ओके, एंड लास्ट, it is measure of profitability, and this method measure the profitability of the projects because entire cash flow over entire life of the projects are taken into consideration. So this method consider the profitability. Clear? So simple सा उसका मेरिट से फर्स्ट इज व्हाट, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है. ये मेथड एंटायर कैश फ्लो को कंसिडर करता है. ओके, ये मेथड का एम क्या है? इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. बिकॉज ये मेथड से जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा वो एक्यूरेट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है. सो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज होगा. डिसीजन एकदम इजी रहेगा रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड द रिजेक्शन. ये मेथड से कंपैरिजन पॉसिबल है बिकॉज हर एक प्रोजेक्ट का भले डिफरेंट यील्ड इनकम हो अप टू डिफरेंट ईयर, सो भी एक्यूरेट रिजल्ट आता है. एंड दिस मेथड मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बिकॉज ये मेथड में एंटायर कैश फ्लो ओवर एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. एंड demerits of this method, first is what, it necessitate calculation which are complicated and difficult. यानी उसका जो कैलकुलेशन है वो क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट. बिकॉज आपको क्या करना है, जो फ्यूचर का कैश फ्लो मिलना है ना उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा. ओके, सो दिस मेथड इज व्हाट कॉम्प्लिकेटेड मेथड.
it is difficult to understand. Second limitation, जो रेट ऑफ डिस्काउंट सिलेक्ट करना, द रेट ऑफ डिस्काउंट इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अंडर दिस मेथड. इट इज हाउएवर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डिस्काउंट टू बी यूज बिकॉज फ्यूचर कैश फ्लो को कन्वर्ट करने इनटू प्रेजेंट वैल्यू एट सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट. तो कौन सा रेट सिलेक्ट करना है, जो रेट ऑफ डिस्काउंट सिलेक्ट करना है वो कौन सा रेट सिलेक्ट करना है. इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टास्क बिकॉज जो भी रेट सिलेक्ट होता है इट इज़ बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सब ध्यान में रख के रेट सिलेक्ट करना पड़ता है. सो सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टास्क. थर्ड, under this method the present value of the cash flow of the different projects are compared. Thus there is no absolute criteria is provided to judge the desirability of the investment project, and with the help of this method we only select those projects where the NPV is positive. ओके तो सपोज 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ भी पॉजिटिव आता है ना तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं. इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे एब्सोल्यूट क्राइटेरिया क्लियर कट नहीं है कि जो भी आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे वो डिजायरेबल रहेगा या नहीं रहेगा. क्लियर. सो there is no absolute criteria is provided to judge the desirability of the investment projects. Clear. And fourth, it require estimation of the cash inflows and the cash outflow which is difficult task. आपको एवरी ईयर का कैश फ्लो को एस्टिमेट करना, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके लिए एस्टिमेट करना, यानी इनफ्लो को आउटफ्लो को एस्टिमेट करना, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टास्क. सो दिस आर द लिमिटेशंस और द डीमेरिट्स ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. सो फर्स्ट डीमेरिट क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है. सेकंड, जो रेट ऑफ डिस्काउंट सिलेक्ट करना इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टास्क. ओके, ये मेथड से वही बोलना चाहता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव तो एक्सेप्ट. ओके, तो बट एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं कि जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया वो डिजायरेबल ही रह सकता है. ओके, एंड लास्ट, कैश फ्लो को एस्टिमेट करना, कैश आउटफ्लो को एस्टिमेट करना, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट task. So these are the demerits of the net present value method. So lastly, what do you mean by net present value? Net present value method consider the present value of the future cash flow by discounting at certain rate of return. And how it is calculated? It is calculated by difference between present value of the cash inflow and the present value of the cash outflow. तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आएगा? Net present value is what? Present value of the cash inflow minus present value of the cash outflow. आया समझ में? तो सिंपल सा है कि व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है. किसका कैलकुलेट करता है? फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर कैश फ्लो का. और वो कैसे कैलकुलेट होगा? बाय डिस्काउंटिंग एट सर्टन रेट ऑफ रिटर्न. ओके, और ये कैसे मिलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो में से माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो. तो आपका आंसर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है. पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट करना है, जीरो आया तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होगा, आइदर दे एक्सेप्ट या आइदर दे रिजेक्ट द प्रोजेक्ट्स. क्लियर. नाउ नेक्स्ट मेथड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट. बाय.